Yeah, a very good morning to all. Yesterday we have started with our third unit that is based on network layer. And as I already told you, network layer is just a minute. Okay, extremely sorry. Yeah, so the network layer is one of the most important layer as far as your computer network is concerned, because this layer is carrying the packets from source to destination and with the help of what? IP addressing. Okay, so IPv4 addresses are there as well as IPv6 addresses are there, and those addresses are identified by the routing table. Okay, so routing table maintain the IP addresses, source address, destination address, as well as hops. That means how many hops are needed to reach to the destination. And for understanding all these things, we need to understand the switching technique first. And those switching techniques are nothing but what? How the packets are switched from one network to another. आपका पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कैसे स्विच होता है, that we need to understand. After that, in that packet switching, we have studied the three techniques. Out of that, two techniques we have studied in detail. The third technique that we need to understand today. The first technique is circuit switching, the another one is the message switching, and the third one is called as packet switching. Under that packet switching, again, two sub techniques are there. One is datagram packet switching and another one is the virtual packet switching. Okay, so in circuit switching, as I already told you, circuit switching is the method which is most widely used nowadays in telephone communications. Okay, telephone communication के अंदर जो method use होती है, that is nothing but circuit switching method. Under this circuit switching method, the routes are already predefined. आपको पता है कि अगर आपने call place किया, if you are placing the call from Chanwad to Manmad, then the route is already predefined. On that route only, your call is placed and caller is calling, and that calling member is going to receive the call. So these kind of predefined route is already specified in circuit switching. In circuit switching, there are three different phases are there. First one is establishing the circuit. Before actual communication and data, there is a need to establish the circuit with acknowledgement. That means both the parties are agreed on what? Hello communication. Once that hello is done, after that you are transmitting the data, and once the transmission of data is done, then you are going to disconnect the circuit. This is what the simple diagram through which you can understand कि dedicated path is created, and through that dedicated path the communication is performed. आप लोग क्या करते हैं? Communication perform करते हैं. After the हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर। लॉगिन किया है क्या? लेक्चर चल रहा है, मैं लॉग आउट हो रहा हूँ यहाँ से. हाँ, लॉग आउट कीजिए या फिर आपके पर्सनल मोबाइल से ये कीजिए मोबाइल. हाँ. Okay, so here we understood कि multiple switches are there, and those switches are transmitting the data from one location to another location. Okay, so the dedicated path is created in the cloud. This is what the cloud is, which is shown in the figure, and through that figure you understood कि predefined path is there, and through that path only the data is transferred. Then second technique I already discussed about this. This is nowadays is absolute. Okay, no one is going to use this kind of message switching for real time communication. यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए अभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं. थ्रू दैट यू पीपल आर गोइंग टू ट्रांसफर योर सिग्नल्स. ओके, एंड एक्नॉलेजमेंट भी आपको तुरंत वहां पे मिल जाता है. बट मैसेज स्विचिंग इज द टेक्निक that is used nowadays by the bankers. Okay, message switching is the technique that is used nowadays by the many more business companies. और आपको कुछ मैसेजेस देना है, प्रमोशनल मैसेजेस शेयर करना है, मार्केटिंग मैसेजेस शेयर करना है. सो थ्रू दिस मैसेज स्विचिंग, that means the companies are doing their promotions. Through this message switching, the bankers are sending the credit debit messages. So this technique is somewhere in the middle of the circuit switching and packet switching. दोनों का middle है ये. In message switching, the whole message is treated as a data unit. Yesterday also I already told you कि आपका पूरा एक मैसेज क्या होता है? एक सिंगल मैसेज करके ट्रीट होता है, और that particular message is stored in the buffer. Whole message is going to stored in the buffer until the resources on the receiver side will become free.
जब तक रिसीवर साइड के रिसोर्सेस फ्री नहीं होते तब तक वो पूरा मैसेज वो स्विचेस क्या करते हैं, उनके बफर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. इफ द नेक्स्ट होप इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्स टू अकोमोडेट द लार्ज फाइल, द मैसेज इज स्टोर्ड एंड स्विच वेट. यानी आगे वाला जो स्विच है उसके पास अगर मेमोरी ज्यादा नहीं होगी, ओके, तो उस केस में वो क्या करता है, दैट पर्टिकुलर मैसेज इज स्टोर्ड ऑन दैट स्विच ओनली without transmitting that message to the next switch, and that switch is going to wait until the next switch will become free. जब तक आगे वाली स्विच के अंदर जगह खाली नहीं होगी तब तक वो डेटा को कैरी करता है, और कैरी करने के बाद जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है कि नाउ द नेक्स्ट स्विच जिसके ऊपर आपको डेटा भेजना है वो फ्री हो चुका है और आप लोग डेटा भेज सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द मैसेज स्विचिंग. द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक इज व्हाट, एवरी स्विच इज हैविंग लिमिटेड स्टोरेज. हर स्विच के पास क्या है, अपना खुद का लिमिटेड storage, and because of that limited storage, what happen, the switches are not able to store the large messages. This is what the drawback of message switching technique, that also we have studied yesterday. Okay, so इसकी वजह से क्या होता है, communication slow हो जाता है, bandwidth proper utilize नहीं होती है, और real time switch streaming आपको जहां पे करना है वहां पे आप लोग ये यूज नहीं कर सकते. So I am not going to use the message switching in Zoom communication. I am not going to use the message switching in Google Talks, okay, or in Google Meets, because that particular applications are handling the switching of message in real time, and this message switching is not delivering the message in real timing. So that is what the drawback of this particular technique. Then packet switching. This is one of the most important method and most widely used method nowadays. As I already told you, the shortcomings or the disadvantages of message switching and circuit switching are covered in packet switching. Okay, because in circuit switching predefined path is there. In message switching, total message you need to buffer until the resource will become free, until your receiver will become free. So that particular drawback is covered in packet switching. The entire message is broken down into the smaller chunk. What happen in packet switching, आपका पूरा मैसेज छोटे छोटे पैकेट्स में आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. द स्विचिंग इंफॉर्मेशन इज एडेड इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आपके पूरे क्लास को एज अ वन पैकेट ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन पैकेट स्विचिंग क्या बोलता है, आपके पूरे क्लास को अभी मैं 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करूंगा. नाउ आई एम डिवाइडिंग द होल क्लास इनटू द 10-10, द ग्रुप ऑफ 10-10s, दैट इज कॉल्ड एज चंक. And every group of 10-10 is having the source and destination address. मैंने कल आपको बताया था कि आप सभी को नासिक रीच होना है from Chanwad. Okay, now the task is begin. Every group have to reach to Nasik. Whatever path you want to take, you can take. You can move through what Pipalgaon. You can move through the Devra. You can move through the Nifad, Lasalgaon. Not an issue. But what is our destination? The Nasik is the destination. तो आप सभी को क्या करना है, नासिक पहुंचना है. That's why every group of header is carrying the destination and source information. It is easier for the intermediate networking devices to store the small size of packets. What is the drawback of message switching? बड़े बड़े मैसेजेस को स्टोर करना डिफिकल्ट जा रहा था स्विचेस को, जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस आ रहे थे. जब मैं ट्रैफिक को डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे चंक्स में, तो लासलगांव से जाओगे या अलग अलग वे से जाओगे तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कम होगा ना, जो बर्डन आने वाला एक सिंगल चैनल के ऊपर ऑटोमेटिक कम होगा. तो उसी का केयर लेता है आपका पैकेट स्विचिंग. देन सी व्हाट हैपन इन दिस, स्टेशन ब्रेक्स द लॉन्ग मैसेज इनटू पैकेट. द पैकेट्स आर सेंड आउट टू नेटवर्क सिक्वेंशियली वन एट अ टाइम पैकेट आप भेजोगे. हाउ विल द नेटवर्क हैंडल दिस स्ट्रीम ऑफ पैकेट? टू अटेम्प्ट to route them through the network and deliver to the intended destination. अभी क्वेश्चन आता है कि ठीक है आपने पैकेट बनाया, वो डिवाइड कर लिए, सिक्वेंशियली भेजे, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि अभी तो आपको अलग अलग पाथ से भेजना है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में भेजना है, स्विचेस बहुत सारे, पाथ्स बहुत सारे, अभी वो डिलीवर कैसे होगा डेटा डेस्टिनेशन को? दिस इज व्हाट द थर्ड बुलेट इज. अभी वो डिलीवर करने के लिए आपके पास दो अलग अलग अप्रोचेस है. यू आर हैविंग टू डिफरेंट अप्रोचेस टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर डेटा. ओके, सो व्हाट इज दैट डेटा? डेटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच. सो व्हाट इज डेटाग्राम अप्रोच? ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली with no reference to the packet that have gone before. Okay, each packet is treated independently. मैंने पहले आपको बोला हुआ है कि अभी आपका हर पैकेट जो आपने डिवाइड किया हुआ है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होगा. Each node choose the next hop on the packet's path.
हर नोड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो खुद का पाथ खुद सिलेक्ट करे। आपको लगता है कि मुझे यहाँ से लासलगांव जाना है, यू टेक अ पाथ। आपको लगता है लासलगांव से निफाड पहुंचना, यू टेक अ पाथ। फ्रॉम निफाड टू नासिक, यू टेक अ पाथ। आपको लगता है यू नीड टू रीच टू द देवड़ा फर्स्ट, देन कड़वन एंड देन नासिक, ओके, यू कैन टेक द पाथ. All possible routes can be possible, and though that particular routes are captured by those packets. पैकेट में अराइव एट द रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर। अभी आपका पैकेट तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो आप वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होगा। पैकेट में गो मिसिंग, कुछ पैकेट उसमें से मिस भी हो सकता है। सो इट इज अप टू रिसीवर टू रीऑर्डर द पैकेट्स एंड रिकवर फ्रॉम द मिसिंग पैकेट्स। अभी रिसीवर के ऊपर है कि फिर से सोर्स को बोलो कि अरे आपने जो पैकेट भेजे थे वो पैकेट क्या हो गए, उसमें से एक पैकेट मिस हो चुका है, और जो अलग अलग इसमें आपको मिल रहे थे, यानी 1 2 3 4 आपके पैकेट से, तो पहले 3 मिला फिर 2 मिला, तो उसको रीऑर्डरिंग करने का काम भी क्या करता है, रिसीवर करता है। रिसीवर के पास डेटा मिल गया कि उसको रीऑर्डर करने का काम वो करेगा। देन सी हियर द फर्स्ट अप्रोच इज डेटाग्राम, क्योंकि दो अप्रोच है, वर्चुअल अप्रोच एंड डेटाग्राम अप्रोच। तो उसमें से पहला अप्रोच अपन देखते हैं, डेटाग्राम अप्रोच। सी योर पैकेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 चंक्स, 1 2 3 4. Once those packets will enter into the cloud, what happens, students? We are having the switches. जो आपका blue color का circle है, that is the switches. Okay, so that particular packets are transferred from those particular switches. यानी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो डायग्राम बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको आइडिया दे रहा है कि जो पैकेट्स आप भेज रहे हो वो अलग अलग पाथ से पहुंच रहे हैं, और जब वो डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे, ए को पैकेट भेजना है एक्स को, तो जब डेटा एक्स को मिल रहा है, सी सीक्वेंस फॉलो हो रही, क्या 1 2 3 4 सीक्वेंस में भेजा था, सीक्वेंस डेस्टिनेशन को क्या मिलेगी 1 4 3 2, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डेटा रिसीवर को मिल चुका है, एंड वंस द डेटा इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर इन आउट ऑफ ऑर्डर, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रीऑर्डर इट। इफ वन ऑफ द पैकेट इज मिस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स to inform to A, kindly resend the packet. So this is what the datagram approach. Then the next approach is called as virtual circuit approach. So what happen in virtual circuit approach? Pre-plan route is established before any packets are sent. अभी आप बोलोगे सर ये pre-plan तो सर्किट स्विचिंग में भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या एडिशन किया हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एडिशन किया है कि वहां पे तो पूरा डेटा आप एट ए टाइम भेज रहे थे, यहाँ पे आप लोग डेटा छोटे छोटे चंक में भेज रहे हो। ये जो आप लोग छोटे छोटे पैकेट डिवाइड करोगे ना, वो सब लोग सेम रूट फॉलो करेंगे। डेटाग्राम पैकेट में क्या हो रहा था, सब लोग अलग अलग रूट फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे सब लोग अलग, यहाँ पे सेम रूट फॉलो होगा। Each packet contain virtual circuit identifier instead of destination address. Each node on the pre-established route knows where to forward the packets. हर एक को पता रहता है कि पैकेट एग्जैक्टली भेजना कहाँ है और पैकेट एग्जैक्टली रिसीव कहाँ से होगा। ओके, सो इन दैट वे आप लोगों को क्या करना है, वो अंडरस्टूड करना है। इसके एग्जांपल से जो एटीएम होता है, X.25 फ्रेम रिले, या एप्लीकेशंस होते हैं एटीएम पे, तो आप सभी लोग जाते रहते हो। X.25 इज द प्रोटोकॉल। तो ये टाइप के प्रोटोकॉल्स, ये टाइप के एप्लीकेशंस वर्चुअल सर्किट को यूज करते हैं। सो ईच पैकेट कंटेन वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी यहाँ पे हर पैकेट डेस्टिनेशन कहाँ है उसको कैरी नहीं करेगा, वो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को कैरी करेगा। ईच नोड ऑन द प्री एस्टैब्लिश्ड रूट knows where to forward such packets. Okay, next. See here, virtual circuit approach. A route between station is set up prior to data transfer. Okay, रूट पहले से सेट हो चुका है स्टूडेंट। देखिए ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन पे ऑलरेडी आपका रूट सेट हो चुका है, यही पाथ से आपको डेटा भेजना है। ये वर्चुअल पाथ है, दिस इज द वर्चुअल पाथ। सी पहले आपने डेटा भेजा 1 को, ओके 1 ही आगे भेज जाएगा लेकिन पाथ फिक्स है। फिर 2 भेजा, 2 भी उसी पाथ से जाएगा लेकिन पाथ फिक्स है। इसी वे से आप लोग क्या करते हैं, डेटा को डिलीवर्ड करते हैं। ऑल पैकेट्स ऑफ डेटा, all the data packets then follow the same route, but there is no dedicated resources reserved for the virtual circuit. Packet need to be stored and forward. फिर से यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्किट या रिसोर्स फिक्स नहीं किया जाता है, जैसे जैसे उसको पाथ मिलेगा वैसे वैसे उसी पाथ के ऊपर से डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। So this is what the beauty of virtual circuit approach. Okay, so these are what the examples or comparison you need to understand here. Datagram और subnet, datagram and subnet किसके examples हैं, पैकेट स्विचिंग के। सर्किट सेटअप नो नीड, डेटाग्राम में कोई सर्किट स्विच की सेटअप की जरूरत नहीं, जिसको जो पाथ मिलता है वो लेते जाता है। सर्किट सेटअप की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है किसमें, वर्चुअल सर्किट के अंदर। एड्रेसिंग, ईच पैकेट कंटेन द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। वर्चुअल सर्किट के अंदर वर्चुअल सर्किट नंबर वो कैरी करता है।
State information. Router do not hold the state information. Each virtual circuit requires the router table space per connection. Routing. Each packet routed independently. Route chosen when the virtual circuit setup is done. Okay, तो देखिए ये कुछ डिफरेंसेस इसमें दिए हैं. आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफिकल्ट है डेटाग्राम के अंदर, इसके अंदर इजी है क्योंकि पाथ फिक्स है. कंजेशन कंट्रोल डिफिकल्ट होता है डेटाग्राम के अंदर, कंजेशन कंट्रोल इसमें इजी है क्योंकि पाथ फिक्स है. देन ये तीनों का डिफरेंस है स्टूडेंट. सी सर्किट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल स्विचिंग. यानी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का ज्यादा डिफरेंस क्यों बताया? क्योंकि आप लोगों का मैसेज स्विचिंग के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं है. मेन फोकस किसके ऊपर है? सर्किट स्विचिंग के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एज इट इज कैरी होते हैं. किसमें? डेटाग्राम, पैकेट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में. इसलिए वो चीजें क्या की गई यहाँ पे आइडेंटिफाई या फिर कंटिन्यू की गई है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टूड. आपको एक ये क्या करनी है, ये चीजें धीरे धीरे अंडरस्टूड करनी है. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज आईपी प्रोटोकॉल. ओके, सो सी हियर I think so the all switching techniques are clear to everyone. Is switching techniques are clear, students? Yes or no? Yes, sir. Okay, just we will take a quick what we can say rapid fire round. Okay, so tell me which one is the best technique among all three? Packet switching. Packet switching. Okay, Payal Agrawal or Mayur Ghorpade, tell me what is the difference between datagram switching and virtual circuit switching? What is the difference between datagram switching and virtual circuit switching? Payal or Mayur, are you there in the meeting? Yes, sir. Okay, Mayur, can you tell me? Sir, in datagram means each chunks or packet travels differently in different routes. Okay, very good. In virtual packet switching, route is fixed for all the packets origins. Okay, Payal, tell me what is message switching? Payal Agrawal, roll number 28. What is message switching? What are the drawbacks of message switching? Payal. Disha Patni. Payal, you call me after this lecture. I will wait for your call. Okay, Disha Patni. बहुत ज्यादा लीव करके फायदा नहीं है. आप लोग अगर ये लीव करेंगे तो मुझे समझ रहा है पे कौन कौन लीव कर रहा है. I will take the action on those students. In chat box total 54 responses are there. Okay, and total 35 are present. I have to be very strict on your class now. Yes, Disha. Yes, sir. Why you take too much time to unmute yourself? Why you take too much time to unmute yourself? That you are not listening to the lecture, right? You are just No, meeting and moving here and there in the home, right? no, sir. Then Payal Agrawal, see, after 2-3 minutes also Yes, sir. going to unmute herself. Yes, Payal. Yes, sir. क्या कर रहे थे? आपको हाँ नहीं भी नहीं बोलते आता अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आपको? Sorry, sir. I am asking you, are you there in the meeting or not? Yes, sir. Then also you are not replied. That means you are not serious about attending the lectures, right? No, sir. Sorry, sir. Pranjal Sakla. So it's Prajal Sakla. Pranjal, can you tell me the answer? What are the drawbacks of message switching? No, sir. Okay, one task is given to you. You just take a long screenshot of this. ये जो chat box में attendance लगाए ना उसका long screenshot लो और मुझे भेजो. Now I need to compare the number of participant present and number of participant
those are just giving the proxy attendance. Today I need to find out that. Okay, Pranjal, is it clear? Sir, it's Prajal actually. And for what screenshot, sir? मतलब जो चैट बॉक्स का लॉन्ग स्क्रीनशॉट लो आप. हाँ ठीक है सर, चलेगा. हाँ 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 सर. देखिए, नाउ द स्ट्रेंथ इज 41. Your class is having strength of 73. Out of that, only 35-38 students are regularly attending. Is it the joke we are doing? Shall I take a strict action on your class, or shall I skip this particular unit? Now I will compare after this lecture, okay? And I will take a strict action on those students. आपके पेरेंट्स को कॉल करने लगाऊंगा मैं डायरेक्टली, अगर आप लोग लाइटली ले रहे होंगे तो. If we are giving our 100% of 40 minutes, then you should be there 100% for that particular 40 minutes. If you are thinking computer network is very easy subject, then it's really tough for you, because many more analytical questions are there. IP addressing is there, throughput calculation is there. Is it really so easy? You are thinking performance calculation is there, pure aloha throughput calculation is there, subnet calculations are there, but you are not serious, I think so. And this is the core subject for lifelong learning. Everyone is using internet nowadays. आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हो, and if you don't know how internet will work, how packets are transferred, how errors are detected, then what is the use of that? Just for cracking the subject and learning something, okay, and scoring the good marks in the examination is not the aim. So please remember and be serious. Next time, if I am asking you the question, you should unmute yourself immediately and respond me. Is it clear? Yes, sir. Now 43 strength is there. See this. 33 पे आ गई थी, अभी 43 पे आ गई है strength. Why you people are doing that kind of manipulation? I don't know. Okay, I will finish my task. Okay, आपको सीरियस होना है तो हुई है, नहीं अगर हुए तो आपका ही नुकसान है. If you want to do the higher study, this subject is having 20 marks in GATE. 20 marks का वेटेज दिया है गेट में इस सब्जेक्ट को. Okay, our next task is IP protocol. We need to understand the internet protocol, and two types of internet protocols are nowadays very famous and most widely used in the world, that is IPv4 and IPv6. What is IPv4? IP stand for internet, V stand for version, and 4 stand for version 4. Okay, and next IPv6. IPv6 is there of version 6. Why there is a need of IPv6? The reason behind that is IPv6 is having total 128 bits and IPv4 is having total 32 bits. So these total 32 bits are responsible to generate 2:32 bit IP addresses. 2:32 IP addresses. Total 2:32. If you imagine, the figure is quite big. Okay, तो उतने IP address वो generate करता है. But as I already told you, in the current era, every moment, every second, the computers or mobiles are getting attached to the internet. हर वक्त मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि every person is having around 2 to 3 devices with them. हर के पास 2 to 3 devices वहां पे होते हैं, and those 2 to 3 devices are having their own IP addresses. So these IP addresses are not sufficient nowadays. वो जितने IP addresses आपने IPv4 में देखे थे वो sufficient नहीं हो रहे. Okay, that particular quantity is not that much sufficient. So in order to improve the quantity, the new IP addressing scheme were launched in the market, and that scheme is IPv6. This IPv6 scheme is having total 128 bits. So 2:128. जब 2:128 आप लोग देखते हो तो can you imagine 2:128 is quite big figure, and आगे के 20 साल तक भी ये IP addresses खत्म नहीं होंगे. So why there is a need of IPv6? क्योंकि IPv6 का
आईपी जो रेंज होता है आईपी एड्रेसेस असाइन करने का वो ज्यादा है। IPv4 का जो रेंज है वो कम था, वो खत्म हो चुके थे वर्ल्ड में से, थोड़े थोड़े कम कम होते जा रहे थे। और वो जो शॉर्टफॉल था, देखिए आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, जब 1998 में 98 का सीरीज था, फिर 99 का सीरीज आया, फिर 94 का सीरीज आया, फिर 95 का आया, फिर अभी 67 का आया, 78 का आया। ये सीरीजेस क्यों आने लग गए मार्केट में? क्योंकि एक पर्सन के पास दो दो तीन तीन मोबाइल नंबर आने लग गए। सो वो शॉर्टफॉल को भरने के लिए अपने को एक प्रॉपर चैनलाइज या फिर हर कंप्यूटर को एड्रेस देने के लिए आपको एक स्कीम लगेगी, और वही स्कीम इंप्लीमेंट की गई IPv4 IPv6 के अंदर। ओके अभी आप बोलोगे सर मैक एड्रेस तो ऑलरेडी होता है हर कंप्यूटर को, फिर आईपी एड्रेस क्यों असाइन करना है? बिकॉज राउटर इज आइडेंटिफाइंग द आईपी एड्रेसेस एंड योर मैक एड्रेसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द डेटा लिंक लेयर। क्योंकि हर लेयर का अपना अपना काम है, और हर लेयर के अपने अपने काम के हिसाब से अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर जो आपको लॉजिकल या फिजिकल एड्रेसेस को ढूंढना है, वो एड्रेसेस आपको प्रॉपरली क्या करने हैं वहां पे अंडरस्टूड करने हैं। और अगर वो एड्रेसेस आप लोग प्रॉपर अंडरस्टूड नहीं करेंगे तो उस वे से आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। ओके दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि IPv4 आर इक्वली इंपॉर्टेंट और आईपी एड्रेसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट if we compare with the physical addresses. So physical addresses is the responsibility of data link layer, IP addresses is the responsibility of network layer. Now we will see the IP address in detail. अभी IP address को अपन और डिटेल में देखेंगे। See here, what is this IPv4 datagram format? अभी आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा फॉर्मेट क्या है? Listen, अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, हेडर चेकसम, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, टाइम टू अलाइव, ये सभी बिट्स एज अ हेडर करके अटैच होते हैं आपके डेटा के साथ। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ब्लू कलर वाला पोर्शन आपका डेटा पोर्शन होता है, और आपका जो येलो कलर का पोर्शन है वो हेड है। यानी इसी का मीनिंग अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो अपना पूरे बॉडी के अंदर एक हेड जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, और हेड के नीचे, नेक से नीचे जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी पार्ट। सिमिलरली एवरी डेटा इज हैविंग द हेडर्स एंड ट्रेलर्स। मैं बहुत बार आपको बोलता हूं कि हेडर्स ट्रेलर हर लेयर के ऊपर अटैच किए जाते हैं, क्योंकि उसका अगर हेडर ट्रेलर अटैच नहीं करोगे तो आप लोगों को कैसे समझेगा कि वो कौन सा टाइप का पैकेट है, उसका सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, प्रोटोकॉल कौन सा है, कितने टाइम तक वो लाइव रहेगा, कौन से टाइप की सर्विसेज वो देगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट और इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, there is a need of what IPv4 header. अभी ये header exactly क्या क्या मेंटेन करता है? See here, the header is having the size of 20 bytes to 60 bytes. तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा what is the size of IP header? So you can answer the minimum size of IP header is 20 bytes and the total size of IP header is 60 bytes. ओके अभी ये 60 bytes 20 bytes बना कैसे, किस वे से बना, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद आता है आपका एक्चुअल डेटा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो फील्ड है वो 4 बिट की है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हेडर है स्टूडेंट्स, दिस इज टोटल हेडर। और इस हेडर में 4 बिट 4 बिट, तो 4 और 4 कितने बन गए, 8 बिट, तो ये 1 बाइट हो गया। सर्विस 8 बिट्स 2 बाइट्स हो गया। आगे की टोटल लेंथ 16 बिट्स, तो कितना हो गया 2 + 2 4 बाइट्स। यानी देखिए ये पूरा जो आपका पहला रो बना हुआ है वो 4 बाइट से बना है। ओके सो 4 बाइट्स 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Can anyone tell me how many bytes are there total minimum? Anyone? 20 bytes. Very good. 20 bytes are there student. जब 20 bytes मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मिनिमम साइज तो मिनिमम 20 होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए सोर्स आईपी एड्रेस। Can anyone tell me what is the size of IP address in bits or bytes? कितने बिट्स का होता है या बाइट्स का होता है स्टूडेंट्स? Yes. 32 bits. 32 बिट्स का, वेरी गुड। 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। तो देखो 4 बाइट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस, 4 बाइट का सोर्स एड्रेस, तो 4 और 4 8 हो गए, 8 + 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, टोटल 20 बाइट्स का हेडर मिनिमम होगा। और नीचे ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स। ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि आगे वाले जो 20 to 60 वाले बाइट्स है वो इस ऑप्शन फील्ड में कवर होते हैं। आगे आने वाले जो 20 to 60 बाइट्स है वो कौन से फील्ड में कवर होते हैं? ऑप्शन फील्ड में कवर होते हैं। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वहां पे आपको क्या करना है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट IPv4 डेटाग्राम
फॉर्मेट, IPv4 का हेडर फॉर्मेट जो है, IPv4 का जो डेटाग्राम फॉर्मेट है, ये आपको क्या करना है यहाँ पे अंडरस्टूड करना है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट IPv4 हेडर डेटाग्राम फॉर्मेट. ओके, देन अभी मैं हर फील्ड का आपको 1 by 1 चीजों को क्लियर करता हूँ. सो व्हाट इज द फर्स्ट फील्ड? वर्जन. व्हाट इज दिस वर्जन? अगर वर्जन में 4 आता है, वर्जन में 4, अभी 4 कैसे आएगा? 0101. ओके, सॉरी, 4 किससे बनेगा? 001 ना. हाँ, सो द वैल्यू ऑफ 4 इज व्हाट? 0100. राइट? राइट और नो? रॉन्ग? The value of 4 is what? 010. 0100. So 0100 is what? 4. तो वर्जन वैल्यू अगर यहाँ पे 0100 जाता है तो IPv4 वर्जन है, और वहां पे 6 जाता है. अभी 6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0110. अगर वहां पे वैल्यू 0110 गई तो समझ लो IPv6 वर्जन. व्हाट इज नेक्स्ट? हेडर लेंथ. व्हाट इज नेक्स्ट फील्ड? हेडर लेंथ. हेडर लेंथ इज 22 बिट्स वर्ड टिपिकली. हेडर लेंथ जो होती है आपकी, वो हेडर लेंथ जो यानी हेडर की जो लेंथ होगी, यानी यहाँ पे देखिए 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स, इसमें से कितने बाइट्स का वो हेडर है, अगर वो साइज आपको कैलकुलेट करके वहां पे स्पेसिफाई करना है तो वो बिट जाता है आपका एच लेंथ के अंदर. व्हाट इज द नेक्स्ट बिट? सर्विस. सर्विस के अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं, और 8 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? देखो यहाँ पे सर्विस टाइप इन द फील्ड IPv4. तो ये 8 बिट्स है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 बिट के अंदर आप लोगों को डिसाइड होती है टाइप ऑफ सर्विस. टाइप ऑफ सर्विस देखिए, टाइप ऑफ सर्विस. अभी टाइप ऑफ सर्विस में क्या क्या बिट्स है देखिए. D स्टैंड फॉर मिनिमाइज डिले. टाइप ऑफ सर्विस यानी सर्विस फास्ट मिलनी चाहिए ना, तो पहला है मिनिमाइज डिले, दूसरा है T मैक्सिमाइज थ्रूपुट, तीसरा है R मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, चौथा है C मिनिमाइज कॉस्ट. ओके, सो ये 4 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आपका IPv4. So this IPv4 is providing 4 type of services: minimize delay, maximize reliability, maximize throughput, minimize cost. अगर ये सब मिनिमाइज मैक्सिमाइज अगर आपकी सेटिस्फाइड हो गई तो समझ लीजिए क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको वहां पे मिल रही है. So type of service is also done. Then next field is total length. So what is this total length? This total length will give the size of data also as well as the size of header also. यहाँ पे सिर्फ हेडर का साइज मिला था, ये टोटल लेंथ के अंदर आपको ये डेटा पैकेट्स कितने हैं प्लस हेडर पैकेट्स कितने हैं, दोनों का साइज देने का काम कौन करेगा? आपका टोटल लेंथ. व्हाट इज नेक्स्ट? आइडेंटिफायर फ्लैग्स फ्रेगमेंटेशन. यूज प्राइमरीली फॉर फ्रेगमेंटेशन. स्टूडेंट आपको मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में आप लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग the data into the small packets, at that time you can say you need to create the fragments. आपको छोटे छोटे fragments वहां पे create करने. ओके, एंड फ्रैगमेंट क्रिएट करके आप लोग क्या करोगे? वो फ्रैगमेंट्स को मैनेज करने का जो काम किया जाता है, आइडेंटिफायर असाइन करने का जो काम किया जाता है, वो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट के साथ. द नेक्स्ट बिट इज फ्लैग. फ्लैग इज ऑलरेडी नोन टू यू. फ्लैग का काम क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग बिट को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैग. देन टाइम टू लाइव. टाइम टू लाइव क्या करता है स्टूडेंट्स? कि वो पैकेट कितने टाइम तक लाइव रहेगा. जैसे उसका काउंटर डिक्रीमेंट होके 0 तक पहुंच जाएगा तो समझ लीजिए वो पैकेट भेजने का बहुत ट्राई किया, लेकिन टाइमिंग का एक्सपायरी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम एक्सपायरी आपका डेटा सामने वाले को डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? टाइम टू लाइव. देन व्हाट इज नेक्स्ट? प्रोटोकॉल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, multiple protocols are there in your computer network. Which protocols are there? TCP, UDP, then ICMP, IPv4, IPv6, then SMTP, then HTTP, DNS. ये सभी टाइप अलग अलग हेडर के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल. अभी अगर वहां पे 6 वैल्यू जाती है तो समझिए वो TCP प्रोटोकॉल है. अगर 1 वैल्यू पास होती है तो समझिए वो ICMP प्रोटोकॉल है. 17 नंबर की वैल्यू पास होती है तो समझिए वो आपका UDP प्रोटोकॉल है. तो हर वैल्यू के साथ हर प्रोटोकॉल का वैल्यू चेंज होते जाएगा. देन हेडर चेकसम. व्हाट इज दिस हेडर चेकसम? हेडर चेकसम का मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाई वेदर देयर आर एरर्स इज देयर और नॉट. अगर एरर होगी तो वो चेकसम के थ्रू चेक होगा, एरर नहीं होगी तो वहां पे बता देगा कि एरर इज नॉट देयर इन द फील्ड, आप आपका डेटा भेजो. सोर्स फील्ड 32 बिट का सोर्स एड्रेस होता है. डेस्टिनेशन फील्ड 32 बिट का डेस्टिनेशन आईडी होता है. ऑप्शन सोर्स राउटिंग, रिकॉर्ड रूट,
परफॉर्मेंस इश्यू एट द राउटर। ओके, तो ये और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको मेंटेन करनी है तो मेंटेन करवाने का काम कौन करता है? आपका ऑप्शन फील्ड करवाता है। एंड थ्रू दैट ऑप्शन फील्ड आप बोल सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर देन हेडर इंफॉर्मेशन, ये 20 बाइट छोड़ के कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो ऑप्शन फील्ड में जाएगी। लाइक राउटिंग टेबल कैसे होगा, रिकॉर्ड रूट कैसे होगा, उस सभी का पूरा मैनेजमेंट करने का काम एक फील्ड करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन फील्ड। So this is what all about the fields which are there in your IPv4 header. IPv4 के अंदर देखिए प्रोटोकॉल का वैल्यू 1 होगा तो ICMP, 2 होगा तो IGMP, 6 होगा तो TCP, 17 होगा तो UDP, 89 होगा तो OSPF। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज है। अभी आप बोलोगे सर और कौन कौन सी वैल्यूज है, तो SMTP प्रोटोकॉल 25, SMTP प्रोटोकॉल 25, HTTP होगा तो 80, HTTP होगा तो 80। तो इस वे से अलग अलग वे से क्या होते हैं, आपके अलग अलग वे से प्रोटोकॉल को मैनेज किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ऑप्शन फील्ड में और क्या क्या न्यू चीजें है, सिक्योरिटी है, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग, रिकॉर्ड रूट, टाइम स्टैम्प, ये सभी चीजों को मैनेज करने का काम किसके अंदर होता है? ऑप्शन फील्ड के अंदर। ये एडिशनल फील्ड ऐड की गई है, दैट इज IPv4 ऑप्शनल फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द हेडर दैट वी स्टडीड टुडे। उसके बाद अपन देखेंगे कल के लेक्चर में IPv4। It's a request to all, please do not miss the lecture. One of the most important part in your syllabus, IPv4 subnetting, IPv4 कैसे होता है, किस वे से सम्स कैलकुलेट होते हैं। Please do not miss the lecture. This is the humble request. जो मिस कर रहे हैं, जो अटेंडेंस गलत लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। ओके, ओके, सो गुड डे, बाय।